Hello Vivekians, how are you? I hope you all are safe at home and you are enjoying your school from home. Welcome to fourth session of maths class. First of all, we will recall the topics which we learned earlier. That is meaning of the fraction. Second topic we have studied why we study fraction, types of fraction, addition and subtraction rules, multiplication of fraction by whole number and multiplication of fraction by fraction. These topics we have studied, and today's topic is division of fraction and reciprocal of fraction. So first of all we will study about the division of fraction. As you know that when we divide 0 is a whole number. When we divide 0 by a fraction, so as you see 0 is a dividend and 1 by 9 is a divisor. If dividend is a 0, then always we get the result is 0. Okay, but if divisor is 0, so answer is not 0. Answer will be does not exist. Okay, does not exist. As I told you earlier that कि divisor can't be 0. कि divisor कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर 0 है तो आपका result क्या आएगा कि the number does not exist. ठीक है, and dividend can be 0. So now we will continue the question number 5. C part. On the base of this question, you can solve 1 to 4 question of exercise 2.3. Now here, as you see, this is a mixed fraction divided by again mixed fraction. Clear? First of all, we will solve this bracket. This is a mixed fraction. We will convert into improper fraction. So we get 7 by 3 and this 3 by 2. Now in this bracket again both fractions are the mixed fraction and we will convert into improper fraction and we get 16 by 3 and 5 by 2. Now because we are starting the topic division of fraction, so today in this sign of the division will convert into multiply, and when we convert the sign of division into multiply, so divisor जो है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. याद रखिएगा डिवाइजर का रेसिप्रोकल होना है, डिविडेंड का नहीं होना. तो 7 by 3 दिस इज अ डिविडेंड, इट रिमेन सेम. 7 by 3 डिवाइड साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, एंड जो हमारा डिवाइजर था डिवाइजर को हमने रेसिप्रोकल कर दिया. रेसिप्रोकल करके हमें क्या मिला है 3 by 2 का 2 by 3. Okay, is it clear? तो reciprocal of a fraction by interchanging its numerator and denominator. तो यहाँ पे हमने interchange कर दिया numerator और denominator को. So आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी numerator और denominator have no common factor, तो cutting is not possible, so we will multiply numerator with numerator. तो 7 to the 14 and 3 3 the 9. Same with the second bracket, we will do this because no common factor with numerator and denominator. So we multiply 16 to the 32 and 3 5s are 15. Now brackets are removed. Now this division sign will convert into multiply sign, and जो आपके पास डिवाइजर है 32 by 15 उसका हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, दैट विल बी 15 by 32. बट हेयर कटिंग कैन बी पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज 9 and 15 common factor, both are the multiples of the 3, so we have cut 3 3 the 9 and 3 5s are 15. सेम यहाँ पे भी आपने ऐसे ही कटिंग किया. 2 7s are 14, 2 16 the 32, and then we multiply numerator with numerator. 7 5s are 35, 3 16s are 48. This is a proper fraction. As you know that proper fraction numerator is less than the denominator, so we can't convert into. तो दिस इज द आंसर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. अब यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि साइन ऑफ डिवीजन ऑफ प्लस. तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या हम फॉलो कर रहे हैं, एक होता है द मास, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द साइन ऑफ द डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन साइन, एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन का हमने साइन. ऑफ, इफ ऑफ वर्ड इज गिवन देन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दैट साइन. ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे ऑफ की जगह पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई. अब सबसे पहले आपने जो है ना, देखो रूल क्या होता है बोर्ड मास. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. अगर ब्रैकेट दे रखी है तो इनकेस ब्रैकेट इज नॉट गिवन, सो
आपने ओ साइन, ओ मतलब क्या है ऑफ, ऑफ वर्ड है तो ऑफ को आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं थी तो हमने ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ को किया मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपने ये करना है 3 1 से 3, 5 5 से 25। आप देखो ऑफ साइन सॉल्व हो चुका है, नाउ डिवीजन साइन। तो डिवीजन साइन यहाँ पे तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। 13/5 डिवीजन साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर, सो इट विल बी 25। नाउ बोथ आर द कॉमन फैक्टर, 5 एंड 25 कॉमन फैक्टर है, तो देखिए कटिंग हो गई, 5 1 5, 5 5 से 25। नाउ 13 5 65, 65/3। अब यहाँ पे क्या है, तीनों ही फ्रैक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं और एडिशन साइन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई साइन नहीं है तो स्किप दैट, वी विल स्टार्ट बाय एडिशन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू सेम डिनोमिनेटर, तो बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लिया 12, उसके बाद आपको पता है कि इसको सॉल्व करके आपका आंसर बना 272/12। दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर है 4 के, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया, आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसकी कटिंग की हमने, कटिंग करके हमारे पास क्या है 68/3। अब आप चाहो तो आप इसको जो है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 of exercise 2.3. In this question, in a school 3/5 of the students are girls. If the strength of the student is 4500, find the number of boys and girls. अब यहाँ पे देखो क्या है, 3/5 ऑफ है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का 3/5 क्या है, गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 4500। अब नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3/5 ऑफ द स्टूडेंट, तो मैंने वही लिखा 3/5 ऑफ द टीएस मीन्स टोटल स्टूडेंट। तो ऑफ साइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, टोटल स्टूडेंट्स पर 4500। यहाँ पे भी 4500 और 5 दोनों हैव कॉमन फैक्टर, तो आपने इसका क्या किया, कटिंग करी, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 2700। बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे, टोटल स्ट्रेंथ में से वी लेस number of girls, then we can get the answer, that is the 1800. Okay, so now next question है, by what number should 7/18 be divided to this? तो इट्स अ वेरी सिंपल, बाय व्हाट नंबर, बाय मतलब हो गया डिवीजन, व्हाट नंबर का मतलब मैंने क्या लिया, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 7/18 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वी गेट आंसर 3/1/15। तो आपने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एज यू नो दैट एंड आई टोल्ड इट इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट कि साइन और डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नाउ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइंग, तो अब ये नंबर भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और इसका क्या कर देंगे, डिवाइजर का रेसिप्रोकल क्या, वी गेट आंसर 35/276। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी कांट कन्वर्ट इनटू mixed friction. Now the last topic, that is the reciprocal. ठीक है, reciprocal क्या होता है, two fractions are known as reciprocal of each other if their product is 1। यानी आपके पास जैसे एग्जाम्पल दे रखे 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। अब टू फ्रैक्शंस कौन से हो गई, 3/7 एंड 7/3, ये दोनों ही आर नॉन एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाइड दीज टू फ्रैक्शन, तो हमने मल्टीप्लाई किया, as you know that numerator and denominator both are cancelling by because both have same value, तो आपने कैंसलिंग कर दी, so we get answer 1। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है कि रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जैसे 7/3, तो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, प्रॉपर। ये कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर इज अ फ्रैक्शनल नंबर। किसी भी होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। सपोज द नंबर इज 15, दिस इज अ होल नंबर। अब इस होल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा,
1/15, क्योंकि 15 मीन्स इट्स डिनोमिनेटर इज 1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/15, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब आगे लिखे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, एज वी नो दैट 15 इज ग्रेटर देन 1, तो इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से कम। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/15, एंड दिस इज अ लेस देन 1. On the basis of these questions, you can solve the exercise 2.3. Thank you. Have a nice day.